خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو فون ان پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد اشرف صاحب، ڈائریکٹر شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا سری نگر۔ ناظرین، اگر آپ سورا انسٹیٹیوٹ سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے دکھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید آپ کا پروگرام میں۔ سر، 1982 میں انسٹیٹیوٹ کمیشن ہوا ان وے، اس سے پہلے 76 سے بنتا رہا، تب سے آج تک تقریباً 43 سال ہو گئے۔ آپ بھی بہت سالوں سے انسٹیٹیوٹ سے واقف ہیں۔ Why do you see the institute today in terms of development, in terms of medical care? See, شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز 82 میں کمیشن ہو گئے۔ اس ٹائم نارتھ انڈیا میں یہ تیسری لیول پہ تھا، جب ایمز نیو دہلی، پی جی آئی چنڈی گڑھ جی، اور پھر تھا سکمز سری نگر۔ اس کے بعد بنا سنجے گاندھی انسٹیٹیوٹ آف پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سائنسز لکھنؤ ہے۔ ملک بھر میں کچھ گنے چنے 5-10 انسٹیٹیوٹ ٹوٹل تھے جو اس معیار کے تھے۔ جی، انسٹیٹیوٹ نے اپنا کام کیا ہے، اپنی لرننگ کرو پہ، اپنی سکل کے کرو پہ وہ آگے گیا ہے، مگر میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے نئے انسٹیٹیوٹ ابھر گئے ہیں اور وہ نئے انسٹیٹیوٹ بنے اور پرانے والے جو بنے ہوئے تھے وہ تھوڑا آگے چلے گئے۔ کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بنے۔ ہاں، ان کا ایکسپینشن ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے جیسے امریکن ماڈل ہے پرائیویٹ سیکٹر والا، انڈیا میں وہ اڈاپٹ ہو گیا، پولو آیا، میکس آیا، فورٹس آ گیا، پرائیویٹ سیکٹر کا اپنا طریقہ، تو وہ ان کا کیئر کچھ حد تک آگے چلا گیا۔ جی، تو اگر ہم دیکھیں گے جیسے کل ملا کے اکیڈیمک انسٹیٹیوشن دیکھیں گے، اکیڈیمیا ہے جس میں ٹیچنگ بھی ہے، ٹریننگ بھی ہے، پیشنٹ کیئر بھی ہے، اور مطلب ایک کمپریہنسو سسٹم جہاں پہ ہے، تو وہ ابھی بھی انسٹیٹیوٹ کا اپنا نام اس معیار میں ہے، بنائے رکھی ہے اس نے امیج۔ اس کے باوجود کہ یہاں ٹرمائل بھی آ گئے، بہت سارے بہت پرابلمز ہوئی، مگر جو انسٹیٹیوٹ کی ریزیلنس ہے وہ برابر رہی۔ ملیٹنسی کی پیریڈ میں 90s کے پیریڈ میں جو کام انسٹیٹیوٹ نے کیا وہ قابل تعریف ہے۔ بالکل ایسا کام مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور جگہ ہو سکتا تھا جو انہوں نے، قابل تعریف کام۔ سر، لوگوں کو اس انسٹیٹیوٹ سے، آپ کے انسٹیٹیوٹ سے کافی امیدیں وابستہ ہیں، جنرل پیپل، جنرل میسز، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی لوگوں سے کچھ امیدیں وابستہ ہیں، آپ بھی لوگوں سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ لوگوں سے؟ دیکھیے، اگر آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں مجھے اس مسئلے پہ میں بہت سارے ایشوز میرے ذہن میں آتے ہیں، مگر اگر دیکھیں کل کا ہی اگر میں بولوں گا، کل ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ہمارے ڈاکٹر صاحبان، ہمارا جو میڈیکل کالج ہے سکمز میڈیکل کالج اور دیگر ہسپتال، دیگر انسٹیٹیوٹ، ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشن پورے ملک بھر کے اسٹرائک پہ چلے گئے۔ جی، ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بھی ڈاکٹر صاحبان ینگ سینئر نکل گئے اسٹرائک کے لیے، لیکن میں اور میری ٹیم جس میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے، ڈین میڈیکل فیکلٹی، ایڈیشنل ڈائریکٹر، ہم نے بالکل نیگوسیشن کی اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ۔ ہم نے ان کو تھوڑا سمجھایا، دیکھیں ہمارے اسٹرائک پہ جانے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے، مگر ہم اپنا جو ریپرزینٹ کریں گے، جو ہمارا میمورنڈم ہے، جو ہمارا احتجاج ہے، وہ ہم رائٹ کوارٹرز تک پہنچائیں گے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے مریض کو جو ایڈمٹ ہے یا جو او پی ڈی میں آتا ہے اس کو تکلیف دیں، اس کی سروسز بند کریں۔ تو میں فخر ہے مجھے اپنی ٹیم پہ، اپنے ڈاکٹرز پہ۔ انہوں نے کینڈل مارچ کیا، انہوں نے بلیک بینڈز لگائے، مارچ کیا، آڈیٹوریم سے او پی ڈی تک گئے۔ میں نے ان کو 10 منٹ کے کاؤنسلنگ کے بعد وہ مان گئے بات کہ کہیں پہ ہماری کام پیرالائز نہیں ہوا، جبکہ یہ جذباتی معاملہ تھا، ایک
छोटी सी यंग डॉक्टर बच्ची के साथ ऐसा मामला हुआ कोलकाता में, बिल्कुल सही, और ये एक वहशाना सलूक हो गया। उसकी मजम्मत तो की हमने, लेकिन ये इशू तो पहला नहीं है ना, ये होता रहा है मेडिकल प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स के साथ। और मैं ये मानता हूं कहीं कहीं हॉस्पिटल, कहीं कहीं डॉक्टर, कहीं पैरामेडिकल, उनकी तरफ से कोई कोताहियां हुई होगी, मगर उस लेवल पे नहीं जाने की जरूरत है कि किसी को मारा जाए, किसी को मैन हैंडल किया जाएगा, तो या हॉस्पिटल को तोड़ा जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म किया है, ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। अगर आप देखेंगे, ये पहली उम्मीद है हमें पब्लिक से कि वो हमारे एम्प्लॉइज डॉक्टर साहिबान के साथ अपना सलूक, प्रॉपर सलूक करे, वो उनके प्रॉपर इज्जत दे, उनकी मजबूरियों को भी समझे, उनकी मुश्किलात को भी समझे, खाली वो खुदगर्ज ना हो जाए, अपनी मजबूरी समझे को डॉक्टर पर टूट पड़े, अस्पताल को तोड़े। उनको ये भी सोचना है, देखिए कहाँ पे ज़रूरत है उनको कोऑपरेट करने की, वो कोऑपरेट करे। मैं मिसाल देता हूँ आपको, हमारे वार्ड 4P में अभी हाल ही में कुछ पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो गई, ड्रिप टाइम पे नहीं लगा, जो सिस्टर वहाँ थी वो खुद बीमार थी, तो वो टाइम पे नहीं आ पाई, क्योंकि हमारे पास स्टाफ की कमी तो रहती है, वो नहीं आ पाई। उसको रिप्लेस करने वाला, उसको 10 मिनट लेट हो गया। जो पेशेंट उसने वहाँ शीशा तोड़ा, अटेंडेंट उसने कंप्यूटर तोड़ा, वो सारा कर दिया। हमें उस लेवल पे जाना पड़ा कि FIR करना पड़ा, उनसे कंप्यूटर के पैसे वापस लेने पड़े, जो भी है। मतलब हमें नहीं जाना चाहिए था इस हद तक, प्लीज था इस हद तक, मगर हम मजबूर हो गए। तो अगर हम अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे, अगर पब्लिक हमसे कोऑपरेट करें, उनके लाइन बड़ी रहती है, वो हमें रिपोर्ट करे, हमें सुझाव दे, हमें मशवरा दे कि लाइन यहाँ बड़ी है, मैं उसका तरीका निकालूंगा। उनको इमरजेंसी में उनको जल्दी सर्विस नहीं होती है, या कोई बेड अवेलेबल नहीं है, या ऐसी कोई चीज़ है, हमारे पास उसका उपाय है, हमारे पास उस चीज़ का इलाज है। मगर उनको चाहिए हमें प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करे। मेरा ऑफिस खुला रहता है, हमें मैसेज दे, व्हाट्सएप पे भेजे, ईमेल में भेजे, किसी भी तरीके से हमारे पास हॉस्पिटल में आपसे मिले, हाँ हमें हमसे मिले, मैसेज दे, हम उसका तरीका निकालेंगे। हम 24/7 उनके लिए खिदमत में पड़े हैं जी। मैं खाली नहीं हूँ, मेरी टीम पड़ी है, हम इंतज़ार करते हैं कब कोई आए हमारे से कोई भी चीज़ मांगे, हम तैयार देने को है। लेकिन उनको नहीं चाहिए ला अपने हाथ में ले और हमारे डॉक्टर या हमारे एम्प्लॉय के साथ वैश्याना बुरा सलूक करे और हमारी किसी चीज़ को तोड़े। अगर हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी है, अगर वहाँ कंप्यूटर है, अगर कोई मशीन है, ये तो मेरी मशीन नहीं है ना, ये पब्लिक की मशीन है। आप कैसे पब्लिक को तोड़ा जाए? इसीलिए यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लागू होता है, वो भी इन्वोक कर सकते हैं। आपको पता होगा 2022 में लोकसभा में एक बिल पेश की गई, वो भी बिल इनैक्ट, वो लॉ नहीं हुआ, पर उस लॉ में अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर के साथ, उसको बोलते हैं CPA, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स ऑफ 2022, उसके अनुसार, उसके मुताबिक अगर आप एक हेल्थ केयर वर्कर के साथ नाजेबा सलूक करते हैं तो आपको नॉन अवेलेबल वारंट 1 साल से 5 साल तक सजा हो सकती है, आपको 50,000 से 2 लाख तक कैश जुर्माना। और अगर आप आपकी वजह से एक हॉस्पिटल एम्प्लॉय को ग्रीवियस इंजरी मिली तो आपको 5 लाख से ऊपर और 5 साल से ऊपर का सजा मिल सकती है। चूंकि वो लॉ अभी इनैक्ट नहीं हुई, एक एपिडेमिक एक्ट है इंडिया में जो पहले से लागू था, तो 2019 में उसको इन्वोक किया गया था। उसके अनुसार भी अगर मैं आपको बोलूँगा, बहुत सारे मतलब क्लाजेस हैं जिसमें आपको सज़ा
जेल हो सकती है, बेल नहीं है उसमें, आपकी प्रॉपर्टी सीज की जा सकती है, आपका जो नुकसान हॉस्पिटल को होता है उसका डबल देना पड़ेगा, बहुत सारे इश्यूज है उसमें। तो पब्लिक को अवेयरनेस करनी है, पब्लिक को ये पता चाहिए। आपके मीडियम से भी मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपकी भी कोई जिम्मेवारी बनती है, आप हमारे एम्प्लॉयज के साथ बुरा सलूक ना करें जी। मगर ये कहते हुए मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने कुछ और उस लॉ में और रेगुलेशन किए, हमें अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर्स भी कुछ जिम्मेवारियां आयद की गई। उसमें यह है कि अगर कहीं पे कंप्लेंट आती है कि वेटिंग पीरियड ज्यादा है जी। जिससे लोगों को गुस्सा आता है जी। तो वो वेटिंग पीरियड का तरीका ढूंढना है हमें, वो कैसे काम किया जाएगा, वो एक तरीका। दूसरा, अगर किसी मरीज को प्रॉपर टाइम पे केयर नहीं मिला उसका भी तरीका है, और लोगों को या उनके अटेंडेंट्स को वो काउंसलिंग करना, उनको समझाना कि इस ऑपरेशन का प्रोसीजर क्या है, ओपीडी में कैसे डेट मिलती है, ये टेस्ट कैसे होता है, इसकी क्या ज़रूरत है। तो जब उनको ये एक्सप्लेन करने की और पर्सनल स्किल्स को डेवलप करने की भी हमें बोला गया कि एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है, जो एमबीबीएस एमडी या डीएम की जो ट्रेनिंग होती है उसमें ये क्यूरिकुलम डालना है कि जो हमारा हेल्थ वर्कर हो या डॉक्टर हो उसको ये स्किल दी जाए ताकि आप मरीज या उसके अटेंडेंट के साथ कैसे बात करोगे, उसको यह सारा कैसे समझाओगे ताकि वो उस लेवल पे उस गुस्से की हालत में आपके पास ना आए, क्योंकि उसको पहले ही ये बात समझ आएगी। मरीज और उसके अटेंडेंट्स भी उस वक्त इम्पेशेंट होते हैं ना कि उसको मेडिकल केयर जल्दी मिले क्योंकि एलिमेंट अगर किसी का हुआ। सर, क्राउड का आपका बड़ा इशू एक है आपके हॉस्पिटल में, क्राउड मैनेजमेंट का। हाउ डू यू मैनेज क्राउड? एक्चुअली वी नीड टू हैव लॉट ऑफ काउंसलर्स होने चाहिए। जो लोग हमारे पास क्राउड आते हैं उनको ये समझाना है कि देखिए जी, अगर यहाँ जैसे बोलते हैं एक बीमार एक अनार 100 बीमार, अगर उस हिसाब से देखिएगा हमारे पास एक डॉक्टर साहब बैठा है क्लिनिक में है, उसके पास वो 20 पेशेंट काफ़ी है उसके लिए, आप 50 देखता है, आप 500 तो नहीं देख सकता है, ठीक है। हमारे ऑपरेशन थिएटर में 5 सर्जरीज दिन को होगी तो 50 तो नहीं कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड वाला एक पेशेंट को 10 मिनट देगा या 20 मिनट देगा तो वो 50 अल्ट्रासाउंड जिसको कहते हैं 500 तो नहीं कर सकते। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे कैजुअलिटी में इमरजेंसी में कुल मिला के 100 बेड है सोरा इंस्टीट्यूट में, वो भी बहुत मुश्किल से एक्सपेंड किए हैं, और हमारे पास 24 घंटे में 950 से 1000 मरीज आते हैं। वो सारे के सारे इमरजेंसी केयर के लायक नहीं है, उनको इमरजेंसी नहीं है कि ताकि वो शाम को रात के 12 बजे 2 बजे टपक आए इमरजेंसी में एम्बुलेंस में जी। नहीं, लोगों को क्या है, वो छोटी सी माइनर प्रॉब्लम लेके भी इमरजेंसी पहुंच जाते हैं। वो 1000 लोगों का क्राउड होता और एक बंदे के साथ 5 अटेंडेंट होते हैं जी। तो लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है। आप क्राउड क्रिएट करते हो हमारे अस्पताल में, ये ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको अपना प्यारा बंदा जिसे आपका प्यारा यहाँ एडमिट होना है, आपको जितना प्यार उससे है, हमें उससे डबल प्यार है उसके साथ। हम पब्लिक की खिदमत में हैं, लेकिन आप हमें उसकी हेल्प करने दीजिए ना। मैं उस मरीज को देखना चाहता हूँ, उसका एसेस करना चाहता हूँ, बीमारी कहाँ पे है, कैसे इलाज किया जाए। लेकिन आप 20 लोग क्राउड करते हैं, हमारे डॉक्टर को उस तक पहुँचने ही नहीं देते हैं। कुछ सिविक सेंस भी ज़रूरत है हमारे लोगों में कि उनको चाहिए, अगर हम डॉक्टर साहब के पास लाते हैं मरीज को, पहले ये सोचना ये जेन्युइनली इमरजेंसी है या ये जेन्युइनली आउटडोर में सोरा के लायक है। सर, वो तो आप ही लोगों ने किया कि अर्लियर इट वाज ए रेफरल इंस्टीट्यूट, इसमें रेफर होते थे केसेस, अब आपने आउटडोर शुरू कर दिया है तो एवरीबडी का। नहीं, मेरी बात सुनिए सर, अगर कोई पेशेंट को सर दर्द है, जुकाम है, डायरिया है, ये टंगडार के छोटा अस्पताल है, वहाँ तो डॉक्टर साहब उसको इलाज कर सकते हैं जी।
اس کو سومو میں چڑھنے 5 اٹینڈنٹ چڑھنے کے سورا آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل صحیح. یہ ایک چیز ہے. اب وہ آیا او پی ڈی میں یا اب آ گیا، اتنے لوگ لانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اگر وہ ہمیں اپنے ریسپانسبلٹیز کو سمجھے، لوگ اگر سمجھیں گے، وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ہائیلی اسپیشلائزڈ ڈاکٹر ہے، سکل ڈاکٹر ہے. ایک ہوتا ہے پہلے ایم بی بی ایس، وہ پرابلم ایم بی بی ایس والا کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. وہ ایم ڈی والا بھی ہے فیلڈ میں. ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز آج کل اچھے بنے ہیں، بالکل سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اچھے بنے ہیں. کمیونٹی ہیلتھ اسٹرکچر جے اینڈ کے میں خراب نہیں، بہت بالکل اچھا بالکل ہے. اچھا. سرکار کی تعریف کرنی چاہیے کہ اتنے سینٹر بنے ہیں. تو وہاں پہ وہاں ایم بی بی ایس والا بھی ہے، فزیشین بھی اسپیشلسٹ بھی ہے. آپ آپ یہ میں ڈی ایم سی ایچ کو ہائی لیول کیئر دینے کی ضرورت ہے. اور جو ان کا ٹیچر ہے، پروفیسر ہے ڈپارٹمنٹ میں، وہ تو ہائیلی کمپلیکیٹڈ کیسز دیکھنے کے لائق ہے. جی آپ اس کو کیوں وہ کام دیتے ہیں؟ آپ جو آٹو میں آپ سواری لے سکتے، وہ جہاز میں کیوں چڑھانی ہے؟ یہ تو مطلب کامن سینس ہے. آپ کو شوق ہے نہیں میں جہاز میں چڑھوں گا، مجھے یہاں سے زین قدل تک جانا ہے، مطلب اس کا تک نہیں بنتا. یہ لوگوں میں ریسپانسبلٹی آنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آپ آگے ہمارے ہاسپٹل میں، ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے. وہ ابھی ہمارے پاس سٹیج نہیں ہے، ہم آپ کو بولیں گے نہیں جی آپ کا کارڈ نہیں بنے گا، آپ واپس جاؤ. سر ڈاکٹر پیشنٹ ریشو کیا رہتا ہے جب اتنے لوگ آتے ہیں؟ ڈاکٹر کتنے پیشنٹ؟ جیسے ہمارا پرسکرائبڈ ہے WHO کا، FDA USA کا، یا ہمارا جو ICMR کی گائیڈ لائن یا NMC کا ہے، ہمیں اس کا کم سے کم 10 ٹائمز کراؤڈ آتا ہے. اگر میں آپ کو وہ پرپورشنز بتاؤں گے تو آپ پریشان ہو جاؤ گے. میں کل ملا کے بتاؤں گا، ہمیں 10 ٹائمز کراؤڈ آتا ہے. آپ دیکھیے سر، اگر آپ دیکھیں گے، آپ ہو گیا آؤٹ ڈور کی بات اور ایمرجنسی کی بات. آپ لے لو ہمارا ان پیشنٹ جو ہے جی، ہمارا شکر ہے ابھی سورا میں ان پیشنٹ میں وہ ایک بیڈ پہ 2 نہیں ڈالتے ہیں، اور بیڈ کے نیچے فلور پہ نہیں ڈالتے ہیں. وہ ایس ایم ایچ ایس کئی جگہوں پہ ہوتا ایل ہے. ڈی ہاسپٹل دوسرے جموں میڈیکل کالج ان میں یہ ہونے لگا ہے جی کہ آپ کا بیڈ نہیں ہے تو نیچے ڈال دیتے ہیں. تو سپوز ہمارے پاس وارڈ میں 32 بیڈس ہوتے ہیں. ان 32 بیڈس کے ساتھ اگر آپ جاؤ گے، 32 بیڈ کے ساتھ 32 اٹینڈنٹ ہوتے ہیں. 32 into 5 اٹینڈنٹ وزٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس وزٹنگ آورس ہے، لوگ اس کا کوئی ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. جب ہم ان کو بولتے ہیں بھائی اس ٹائم راؤنڈ ہوتا ہے، آپ راؤنڈ کے ٹائم مت آئیے گا، وہ ہمارے سیکورٹی کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں. جیسے کالر آن دا لائن. سر ہلو. ہیلو جی اپنا تعارف دیجئے، کون سا، آپ کہاں سے؟ میں سر ادریس احمد وانی بانڈی پورہ سے. جی پوچھیے اپنا سوال، مختصر پوچھیے گا. پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر محمد اشرف صاحب کو ٹو ٹیک اوور ایز دا نیو ڈائریکٹر آف سکم سورا. جی انشاءاللہ اس کی ایبل ڈائریکشن میں یہ ترقی کرے گا انسٹیٹیوٹ. تو سر مجھے ایک چیز پوچھنا تھا سر، جو فالو اپ کرنے آتے ہیں پیشنٹ ڈفرینٹ او پی ڈی ڈپارٹمنٹس میں، جی ان کے لیے آن لائن رجسٹریشن ہوتی تھی. ایک دفعہ انہوں نے شروع کیا تھا لیکن بعد میں روکا گیا. اس سے بھیڑ بھی کم ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کو بھی آسانی ہو جاتی. کیا یہ شروع کر سکتے ہیں اس کو؟ چلیے آن لائن ہاں بالکل یہ صحیح بات ہے، میں اس پہ آنے والا تھا، چلو انہوں نے بتا دیا تو یہ کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے ہسپتال میں ہاسپٹل انفارمیشن سسٹم آلریڈی ہے. سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ کنٹری میں پہلا انسٹیٹیوٹ تھا جہاں HIS سسٹم شروع ہوا تھا، لیکن وہ آگے بڑھا نہیں کچھ وجوہات کی وجہ سے. ہمارے پاس آج آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن جو ہے، آیوشمان میں ایک آبا کارڈ بنتا ہے. آبا کارڈ ایک پیشنٹ کی آئیڈینٹی کارڈ بنتا ہے، اور گورنمنٹ اس پہ بہت زور دیتی ہے آپ آبا کارڈ کو پروموٹ کریے. تو جب میں نے ٹیک اوور کا تو 5 جولائی سے میں نے ٹیک اوور کیا 25 جون کو. 5 جولائی 10 دن کے بعد ہم نے آن لائن رجسٹریشن کو پروموٹ کرنا شروع کیا. تو اگر آپ دیکھو گے شاید ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہوگا، ہمارا اسٹیپلی آن لائن رجسٹریشن بڑھ گئی ہے. اور ابھی اس وقت ٹوڈے آج کے دن میں
इंडिया में, पूरे इंडिया में हमारा हॉस्पिटल ऑनलाइन में तीसरे नंबर पे आया है। तो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बढ़ा दी है। हम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी हम मीडिया में डालेंगे, न्यूज़पेपर में डालेंगे और फेसबुक और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये मैसेज भेजेंगे कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन है वो अपने घर में एक बार कोड जनरेट करे, रजिस्ट्रेशन करे, जो भी 3-4 क्वेश्चन है बार कोड जनरेट करे, जो उनका आधार है, आधार के साथ लिंक करे, तो आधार से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, जो किसी मरीज का सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ब्लड टेस्ट है, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री है, वो सारा उस आधार के साथ उसके लॉकर में सेफ रहेगा। और आगे जाके जब भी उस मरीज को बाई चांस दूसरी कंसल्टेशन जरूरत पड़ेगी, वो अपना नंबर देगा, हम उसको ओटीपी भेजेंगे मोबाइल पे, वो परमिशन देगा, हाँ आप मेरा रिकॉर्ड देख सकते हो, तो वो रिकॉर्ड खुल जाएगा। सपोज वो वहां यहाँ से चला गया दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर या किसी और हॉस्पिटल, प्राइवेट, गवर्नमेंट, वो उसका रिकॉर्ड, उसको ओटीपी जनरेट, वो ओटीपी से परमिशन देगा, हाँ मैं अपना रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ, वो खुल जाएगा, उस डॉक्टर साहब को सारा रिकॉर्ड निकलेगा। ये हमने शुरू कर दी है प्रोसेस, लेकिन अभी हम 100% नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो लोग, हम पूरी तरह तैयार है सोरा में, पर जो हमारे लोग हैं, अभी देहात से लोग आते हैं, पिछड़े हुए इलाकों में से, उनके पास, सबों के पास मोबाइल फोन नहीं है। हम उनको ये प्रेशर नहीं डालना चाहते कि आप मोबाइल खरीदो, वो ठीक नहीं है। और उनके पास सबों को अभी आता नहीं डिजिटल। अभी हम मेरे ख्याल से 70% रखेंगे ऑनलाइन, 30% अभी हम वॉक इन रखेंगे। लेकिन मैं लोगों को रिक्वेस्ट इस्तदा करना चाहता हूँ, वो ना आए छोटी मसलों के लिए यहाँ, पहले वहाँ अपने लोकलिटी में डॉक्टर साहब से चेक करा देंगे। अगर वहाँ डॉक्टर साहब समझेंगे अप्रोप्रिएट, वो समझेंगे नहीं इनको ज़रूरी रेफर करना है, हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, वहाँ भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठेंगे, अगर वो भी समझेंगे नहीं इसको सुपर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन चाहिए, ये इलाज खाली सोरा में हो जाएगा, तो वो हमें एक रेफरल भेजेंगे, हम उनको बिल्कुल तहे दिल से उनको इनवाइट करेंगे, उनको हम पूरा केयर देंगे, लेकिन हमारा रश कम हो जाए तो। जी, एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जनाब, बस डायरेक्टर साहब बस मेरी गुजारिश है, बहुत रशीद तमने पे अहन अर्ज बिलना सेंटरस मज बिल्डिंग सिक्किम सोरा लैंड, मगर यह लॉक। गुजारिश कि डायरेक्टर साहब गुजारिश कि बिल्डिंग बिल्कुल लॉक कर डिस्पेंसरी ताकि सहूलियत। चलो बूझ रशीद साहब बूझ तो सवाल वारिया बोर्ड कि किसी बेमना में कोई आपकी लैंड है, कोई जगह है, तो वो कहते हैं वहाँ पे डिस्पेंसरी कायम करने, तो आप कहाँ डिस्पेंसरी करेंगे? हाँ, आपका तो अलग इंस्टीट्यूट नहीं। देखिए, ये हमारे पास लैंड सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में अभी तक काफ़ी लैंड है, वो बिखरी हुई है कुछ कई जगहों में, कहीं कहीं एनक्रोचमेंट भी है जी। मेरा एंडेवर रहेगा इंशाल्लाह, हम उसका प्रॉपर यूज़ करेंगे। कहीं एनक्रोचमेंट से हम सरकार से इस्तदा करेंगे, हमें मदद करें, क्योंकि जो लोग भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार लोग हैं वो लैंड इंस्टीट्यूट को दे, क्योंकि ये एक कौमी असासा है, पब्लिक प्रॉपर्टी है और इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है पब्लिक के लिए। तो हमें डोनेट अगर नहीं कर पाते हैं, कम से कम खाए ना। सर अभी हम भीड़ की बात कर रहे थे, अटेंडेंस बहुत ज़्यादा होते हैं पेशेंट्स के साथ, इससे क्या इन्फेक्शन का पॉसिबिलिटी रहता है हॉस्पिटल में? बिल्कुल सर, ये आपने बहुत सही बात की, मैं इसी पे आने वाला था। देखिए, हमारा अगर अक्सर देखोगे आप, जो भी आपको मोहल्ले में कहीं ताज़ियत पे, कहीं शादी पे बात उठेगी हेल्थ केयर की, तो वो बोलेंगे सोरा में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा इलाज करते हैं।
لیکن آپ کیوں گئے باہر پرائیویٹ ہسپتال میں, دلی میں کیوں گئے پائیں؟ وہ کہتا ہے سر یہاں پوسٹ آف کیئر اچھا نہیں ہے. پوسٹ آف کیئر اچھا کیوں نہیں ہے؟ کیئر اچھا, لیکن ہمارے پاس جیسے آپ نے بولا کراؤڈ مینجمنٹ کا معاملہ ہے کہ ڈسپلن انکلکیٹ نہیں ہے ہماری کمیونٹی میں. انسٹیٹیوٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمیں یہ سوشل ریسپانسبلٹی نہیں آتی ہے کہ اگر میں چپل یا جوتا لے کے میٹاڈار میں آیا, بس میں آیا, گند سے آیا, تو کسی پیشنٹ کو آپریٹ کیا ہوا, اس کا پیٹ کھولا ہے, برین کھولا گیا ہے, ہارٹ اوپن کیا گیا ہے, میں کیسے اندر گھسوں اور یہ سارے جراثیم جو میں نے لائے وہ اس کے زخم میں گھس جائیں گے, تو اس کا آؤٹ کم کیسے نکلے گا؟ تو ہمارے پاس پوسٹ آپریٹیو انفیکشنز بہت زیادہ ہے, اور وہ انفیکشن اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ پبلک کا کراؤڈ زیادہ آتا ہے. پبلک ریسپیکٹ نہیں کرتی ہے ٹائمنگز جو ہم نے دی ہے وزٹ کرنے کے لیے, اور وہ بھی جو پاس ہم دیتے ہیں وہ پاس 20 روپے کا پاس ہے. وہ کہتے ہیں 20 روپے کون سا معاملہ؟ وہ ایک آتا ہے اس کو بولا میں آپ سبوں کی ٹکٹ نکالوں گا 40 کی, آ جاؤ لوگ, تو وہ 200 روپے دے کے اندر. باہر کے کچھ ہاسپٹلوں سے اگر اٹینڈنٹ آتے ہیں تو وہاں انٹری کے وقت وہاں ان کے ایک سولوشن ہوتا ہے, اس میں ان کے پیر ڈبائے جاتے ہیں تاکہ انفیکشن اندر نہ جا سکے. ہاں بالکل, ہمیں ان کو چینج کرنا چاہیے. تو ہمارے انفیکشن ریٹس ہاسپٹل میں ابھی ہم جو سرویلنس کرتے ہیں, ہمارا ڈپارٹمنٹ آف مائکرو بایولوجی, وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہر جگہ جراثیم نکلتے ہیں, روز بدلتے رہتے ہیں, کیونکہ ہر کوئی آتا ہے سیدھے گھستا ہے. جی. تو اگر آپ ہمارے واش روم دیکھیں گے بہت گندے ہیں. گندے کیوں ہے؟ ہمارا گندا اس لیے ہے, آپ دیکھیں گے اگر ہمارا ایک بیچارہ سینٹری ورکر کام کرتا ہے, کلین کرتا ہے, اس کی کلیننگ کیپیسٹی ہے دن میں اس واش روم میں 50 لوگوں کی. اسی 50 لوگوں کی کیپیسٹی میں 1000 گھستا ہے, اور جب گھستے ہیں وہ کچھ نہ کچھ توڑ ڈالتے ہیں. لوگ بھی ایسے کرسی توڑتے ہیں, کوئی یہ بورڈ کاٹتے ہیں, کہیں پہ دیوار پہ پین سے لکھتے ہیں, لفٹ پہ چڑھتے وہیں لکھتے ہیں. وہ ہمارا سوسائٹی کا کلچر ہے. وہ ہمیں میں ہینڈ فولڈڈ ریکویسٹ کرتا ہوں لوگوں سے کہ وہ تھوڑا سا ریسپانسبلٹی سے بیہیو کرے, ڈسٹ بن کا یوز کرے, اور جہاں پر ریسٹرکشن لکھا ہو اس کا یوز کرے, اور تھیٹر میں, انٹینسیو کیئر میں, ہائی ڈیپینڈنسی وارڈ میں نہ گھسے, اور آپ کی وجہ سے پیشنٹ کو فائدہ نہیں ملے گا, نقصان ہی زیادہ ہوگا. سر we have a call online. ہلو. ہلو. جی. جی سر. جی اپنا تعارف دیجیے صاحب. جی میں ہلال احمد بات کر رہا ہوں پلوامہ سے. جی فرمائیے, پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی پوچھیے, سوال پوچھیے. ہلال احمد وانی سر, میں پلوامہ سے بات کر رہا ہوں. سر پہلے میں ڈاکٹر صاحب کو کانگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ فرام دا سیم ڈسٹرکٹ. آپ ٹی وی سے اپنی آواز نہ سنیں, آپ سوال پوچھیں. آواز آواز. ہلو. آپ تھوڑا ڈاکٹر سے میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم او پی ڈی میں اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں پہلے 6 مہینے کا اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے سر. اچھا. پتہ گژھان کٲم یُتھُے پتہٕ تور چھِ أسۍ واتان سر ڈاکٹر تتہِ چھُنہٕ آسان, تتہِ چھِ یِمو تھٲمٕتۍ سیٖنیر ریزڈنٹ ایس آر آسان تھٲمٕتۍ, کنسلٹنٹ چھُنہٕ تتہِ آسان کِہیٖنۍ. انٹینسو کیئر یونٹُک پیشنٹ چھُ آسان, سپوز کارڈیک ایرسٹ آسان کٲنٛسہِ 6 رٮ۪تھ چھِ یِوان اپوائنٹمنٹ, تتہِ چھُیی نہٕ آسان پتہٕ ایس آر صٲب. بیٚیہِ چھُ مےٚ بیٛاکھ تتہِ چھِ آسان صرف ایس آر, کنسلٹنٹ چھُنہٕ تتہِ آسان کٕہٕنۍ. اکھ چھُ مےٚ یہِ سوال سر. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ سوال یہِ زِ اگرے ہسا وۄنۍ أسۍ واتان چھِ سِکہِ منٛز یا کُنہِ تہِ ہاسپِٹلس گۄڈنیتھٕے چھِ پیوان دپان چھِ کٔرِو سا ایپ ڈاوُن لوڈ. کٲنٛسہِ چھَنہٕ آسان سمارٹ فون چھُنہٕ آسان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ایویلیبل حظ کِہیٖنۍ. تمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ گژھان سۄ پرابلم. سُہ سمارٹ فون سسٹم, یہ ایپ گوٚژھ گژھُن, یہ گوٚژھ گژھُن. اہن حظ ڈاکٹر صاحب وۄنۍ ونان کہ سُہ چھُ سمارٹ فون چھُنہٕ سٲری ہٮ۪کان آپریٹ کرتے. یہ کرے اگر کوئی اپوائنٹمنٹ فکس کرتے ہیں کسی ڈاکٹر کے ساتھ, جب وہاں اسکیمز پہنچتے ہیں تو وہ سم ٹائمز اویلیبل نہیں ہوتا, یا پھر وہاں آ کے اپوائنٹمنٹ سے وہاں ہوتا نہیں ہے. نہیں ایسا کچھ ہوا ہوگا, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوا گا ایسا کوئی انسیڈنٹ, مگر اگر میں کہوں گا سکمز میں بائی اینڈ لارج
बहुत ही प्रॉपर ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म्स इन प्लेस है, अपॉइंटमेंट का सिस्टम बहुत ही बना हुआ है। हमारे थोड़ी स्टाफ की कमी है, मैंने सरकार से इस्तदा की है, स्टाफ थोड़ा बढ़ा देंगे, लेकिन जो हमारे हॉस्पिटल की कैपेसिटी है, क्योंकि मैंने देखा है पिछले 20 साल में मैं एम्स न्यू दिल्ली में रहा हूँ, यहाँ भी रहा हूँ। एम्स न्यू दिल्ली कम से कम 700 to 800 टाइम्स एक्सपेंड हो गया इन सालों में। सिक्किम में कोई एक्सपेंशन हुई नहीं, जबकि पब्लिक का रश बढ़ गया, इंस्टीट्यूट की ये पब्लिक का रश बढ़ गया, और ये एक्चुअली इंस्टीट्यूट का रश बताता है इंस्टीट्यूट की पॉपुलैरिटी। इंस्टीट्यूट पॉपुलर है पब्लिक में, बट उसके साथ साथ हमारी क्वालिटी नहीं रह पाती है जब बहुत लोग आते हैं। तो ऐसा मुमकिन है कहीं लापस हो सकता है किसी अपॉइंटमेंट में, बट बाय एंड लार्ज हमारा अपॉइंटमेंट सिस्टम ओके है। जहाँ पे डॉक्टर साहब को जैसे 20 या 30 पेशेंट देखने चाहिए, सुपर स्पेशलिस्ट कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, उसको हम 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज़्यादा देते हैं। इसका मेरे पास हम इंस्टीट्यूट में थोड़ा रिजिक कर रहे हैं, वी आर मॉडिफाइंग दिस सिस्टम, मगर मेरा सुझाव सरकार से भी है, प्रोबेबली जो पूरा हेल्थ सेक्टर है इसमें एक पेरिफेरी से ही लेके एक रेगुलेटेड अपॉइंटमेंट सिस्टम बने, ताकि जो प्रॉपर रेफरल के सब सेंटर से ही, सब सेंटर से सब डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से मेडिकल कॉलेज से टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में एक रेगुलेटेड सिस्टम बना रहे, जैसे लंदन यूके में है, तो उनका बहुत ही रेगुलेटेड सिस्टम है। लेकिन इंस्टीट्यूट में वही था ना सर, डॉक्टर नागपाल के वक्त सिर्फ रेफरल केसेस आते थे। नहीं, नागपाल साहब का दौर ये ऐसा था, वहाँ उस टाइम इमरजेंसी नहीं थी, खाली रेफरल था। एग्जैक्टली। और रेफरल में क्या था, उस टाइम लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी नहीं थे और पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं थे। हमें उस टाइम 500 बेड की कैपेसिटी थी जी, और पब्लिक जो आती थी बहुत कम थी, स्टाफ ज़्यादा था, 5000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे। आज हाफ एम्प्लॉयज़ है और रश 5 टाइम्स 6 टाइम्स बढ़ गया, सर्जरीज 5.6 टाइम्स बढ़ गई, और जो ओपीडी अटेंडेंट्स 7 टाइम्स बढ़ गई। तो जाहिर सी बात है, इतने सालों में एक्सपेंशन क्यों नहीं हुआ? क्या आपकी नज़र में क्या हुआ? नहीं, एक्सपेंशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शायद मेरे ख्याल से 20-30 साल तो आराम से टर्मोइल में गए। एग्जैक्टली। देखिए, जो लीडर ऑफ द इंस्टीट्यूट होगा उसको छोटे मामलात से बाहर निकलना है, छोटी आपस में एम्प्लॉयज की मतलब बनती नहीं एक दूसरे का साथ, डॉक्टर को कुछ होगा, छोटी चीज़ें है ना, आपको वो बाहर छोड़ के, और छोटे ये लोग आते हैं फाइल लेके, वो डायरेक्टर ये चीज़ नहीं देखना है, डायरेक्टर को देखना आगे का विजन। करेक्ट। अगर मैं आज कोई विजन एक्सपेंशन का ढूंढूंगा, उसका रिजल्ट आज नहीं निकलने ना, ये 10 साल 20 साल के बाद निकले, 40 साल 50 साल, तो वो सोचना चाहिए, तब रिजल्ट निकलेगा। शायद मेरे ख्याल से टर्मोइल में ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ, इश्यूज आ गए, बट आई एम श्योर कि इंस्टीट्यूट ने वो सारे पीरियड सर्वाइव किए, रेजिलियंस दिखाई, आगे ये डेफिनेटली मतलब अपनी जो इमेज थी वहाँ पे आएगा और उससे भी आगे चला जाएगा। डॉक्टर साहब, आपके इस हॉस्पिटल में डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं इस वक्त? डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ एक ज़माना होता था, जो भी फैसिलिटीज़ थे खारे इंस्टीट्यूट में होती थी जी। अब प्राइवेट सेंटर्स भी है, और अगर देखेंगे और भी मेडिकल कॉलेजेस में फैसिलिटीज बढ़ गई जी। जैसे डायग्नोस्टिक फैसिलिटी हमारे पास बेस लाइन सारी होती है। अब जो होता है सपोज एमआरआई, सीटी स्कैन और पेट स्कैन, वो और लोगों ने भी लाए। अच्छा। इसलिए लगता है इंस्टीट्यूट के पास नहीं है, हमारे पास वो ऑलरेडी थी, बट और जगह भी हो, जरूरत है, कोई बात नहीं, देयर शुड बी बैकअप होना चाहिए, अल्टरनेटिव होना चाहिए, वो चीज़ है। मगर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कहीं नहीं है, उन चीज़ों को हमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत। हमारा मैंडेट यही नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला है, जो अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में, हंदवारा मेडिकल कॉलेज में, इवन
दूसरे मेडिकल कॉलेज में, वो हमें नहीं लाने की ज़रूरत है, वो तो है। हमें वो चीज़ देखनी है जहाँ के लिए पेशेंट मरीज़ मजबूर होता है, मैं लंदन जाऊँगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, इंग्लैंड जाऊँगा, एम्स न्यू दिल्ली जाऊँगा, पीजीआई चंडीगढ़ जाऊँगा या किसी प्राइवेट सेंटर में जाऊँगा, हमें वो चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है और हम उस एंडेवर पे ऑलरेडी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपके इंस्टीट्यूट में सीटी स्कैन कितने हैं अभी? नहीं, हमारे पास अभी 3 सीटी स्कैन है। एक सीटी स्कैन है वो थोड़ा पुराना है, उसकी वर्चुअली वो कभी भी बंद हो सकता है। 2 सीटी स्कैन हमने, एक सीटी साइमुलेटर कल पहुंच गया हमें, और इंशाल्लाह इस हफ्ते हम उस सीटी साइमुलेटर को, वो हमारे इंस्टीट्यूट में ही है। सर ये तो वो नहीं कि जो डीआरडीओ से आपको नहीं, वो डीआरडीओ वाला नहीं, वो हमने नया लाया और वो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते में या 2 हफ्तों में हम कमीशन करेंगे। डीआरडीओ वाला जो हमें शुक्रगुजार है इनके हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के लिए, वो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी हेल्थ ने भी सपोर्ट किया, और डीआरडीओ के पास एक सीटी था वो हमने लाया और वो हम यूज़ कर रहे हैं। और हमारे एक पाइपलाइन में एक और सीटी, हाई एंड सीटी 536 स्लाइस वाला, जिसके बहुत ही हाई एंड काम ज़रूरत है। देखिए वो सीटी स्कैन नाम है, सीटी के वर्जन्स होते हैं। एक सीटी स्कैन है सिंपल, किसी को चोट आ गई सर में, हमें सिंपल देखना, कोई ब्लीड तो नहीं है, वो सिंपल सा है, उसके लिए कोई भी सीटी स्कैन 28 स्लाइस वाला भी चलेगा। लेकिन जो हमें बहुत ही हाई एंड कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज के लिए हमें वो लाने हैं, जैसे सेल फोन्स में 2G 4G 5G ऐसे ही एग्जैक्टली हमें वो चीज़ें लानी है। वो हमें इंशाल्लाह मैं अभी नहीं बोलूँगा, जब मैं करूँगा तब बताऊँगा, पहले बोलने का ज़्यादा फायदा नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे मन में है। सर सीटी स्कैन में आइसोटोप्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके पास आइसोटोप्स की रेगुलर सप्लाई है या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि आइसोटोप्स ओपन मार्केट में नहीं मिलते। नहीं, सीटी स्कैन में आइसोटोप की ज़रूरत नहीं है। सीटी स्कैन में कंट्रास्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो है। आइसोटोप ज़रूरत हमें 2 जगह पड़ती है। एक होता है पेट सीटी, पेट स्कैन। पेट स्कैन में हमें, हमारा काली में संडे हम पूरी दिन हॉस्पिटल में रहे, क्योंकि हमारा एक ही पेट स्कैन है, उसमें कुछ फॉल्ट आया था, सिंगापुर से उसका पार्ट लाना है, कंपनी वाले इंजीनियर आए थे, तो कभी कभी ये हाई एंड मशीन है, उनके बाहर से पार्ट्स आते, कुछ भी फॉल्ट आता था, इट टेक्स, क्योंकि वैली जो है जम्मू एंड कश्मीर विंटर में या कुछ में, हमें कभी कभी इसका डिस्टेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, तो कभी सर्विस 1 या 2 दिन ब्रेक डाउन होता है। सर ऐसा तो नहीं है कुछ मशीनें वहाँ फेज आउट हुई हूँ, अभी वो हम चला रहे हैं या फिर पार्ट्स ना मिले? नहीं, ये वाली बहुत ही अपडेटेड वर्जन है, लेकिन अगर पार्ट खराब हो गए, ये ओपन में यहाँ नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है, J&K में नहीं मिलेगा, इवन दिल्ली में नहीं मिलेगा, बॉम्बे में नहीं मिलेगा, तो बाहर से लाना पड़ता, वो एक है। लेकिन जो आइसोटोप की बात की आपने, हाल ही हमारा कहीं से न्यूज़ आइटम निकला था कि सोरा में थायराइड कैंसर के लिए आइसोटोप नहीं है, हमने उसका एक फिर रिप्लाई भी निकाला था। देखिए हमारा जो आइसोटोप है वो कहीं प्राइवेट सोर्स से नहीं मिलता है, नहीं, बॉम्बे से आता उसका बार्क जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है मुंबई में है वो लोकेटेड। ये बिल्कुल एटॉमिक एनर्जी वाला इशू है, बिल्कुल। ये आइसोटोप रेडियो एक्टिव मटीरियल है, ये लाइसेंस मिलना मुश्किल होती है ये होता नहीं अवेलेबल कहीं से, ये एक ही सोर्स से एक्टिविटी आती है, और ये एक्टिविटी आपको एक ही बार साल भर या 6 महीने के लिए नहीं रख सकते। अच्छा। क्योंकि वो रेडियो एक्टिव डैमेजिंग चीज होती है, आपको पता ही है। तो ये वर्चुअली मान लो एक न्यूक्लियर प्लांट है, तो आपको वो प्लांट एक ही जगह है कंट्री में, तो वो हमें पीस मिल्स में वो एक्टिविटी भेजते हैं यहाँ, तो वो हमें उनका एक टाइम शेड्यूल होता है भेजने का। तो जब अभी हाल ही में क्या हुआ, उनका जो एटॉमिक रिएक्टर 3 है, उनके पास 3 में से उनको 2 डिफेक्ट हो गए, एक ही रिएक्टर चलता है, वो एक रिएक्टर पूरी देश को, पूरी कंट्री को सप्लाई करता है मटीरियल, और हमारे पास ये 1 या 2 हफ्ते के लिए ये सर्विस बंद हो गई थी। तो कल
आज मंडे, आज हमारी लो डोज एक्टिविटी वहां से डिस्पैच हो गई। अगले 2 या 3 दिन में वो इंशाल्लाह हमारे पास आ जाएगी। और जो टेस्टिंग वाला, उसको 2 चीजें होती, एक होता टेस्टिंग वेरियस टेस्ट्स के लिए, वो कल से आएगी और हमारे टेस्ट कल से 2 दिन में फंक्शनल हो जाएगी। इसमें और एक चीज है, रेडियो एक्टिविटी में हमारे पास होता हाई डोज, मीन्स जिसको गॉड फॉरबिड थायराइड कैंसर होता है, थायराइड कैंसर हो, हमको रेडियो एक्टिविटी देने से उस कैंसर को डैमेज करते हैं, जो थेरेपी बोलते हैं, हाँ थेरेपी देते हैं, वो डोज थोड़ा हायर डोज आता है। वो मैंने खुद की वहाँ के डायरेक्टर से बात, वो हमें अगले 2 हफ्ते में वो एक्टिविटी भी आएगी। तो हमने लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि जो थायराइड का कैंसर है वो दूसरे कैंसर्स की तरह डेंजरस नहीं होता है। थायराइड कैंसर का ट्रीटमेंट देते वो 30 साल 40 साल 20 साल दे रिमेन विदाउट प्रॉब्लम। थायराइड कैंसर इज अ लो रेटेड मैलिग्नेंसी। तो उसके लिए अगर किसी मरीज को 2 हफ्ते या 3 हफ्ते वेट भी करना पड़े, वेट भी करे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हमारे कभी जर्नलिस्ट भाई है या लोग है, वो उसको उस तरीके से वो समझते नहीं है, वो उसको ऐसे पोर्ट्रे करते हैं, कभी तो लोगों में थोड़ा गलतफहमी पैदा हो जाती है। सर, इमरजेंसी सर्विस को कैसे हैंडल करना इस वक्त, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, फिलहाल तो सिस्टम यही है कि उसको नॉर्मल जहाँ से क्राउड वगैरह होता है वहाँ से गुजरना पड़ता है। आप इमरजेंसी के लिए कोई अलग से वास्ता क्यों नहीं बनाते, ताकि वो इमरजेंसी केस आए वो सीधा उस रास्ते से चला जाए, उसको स्पेशलिस्ट आए और देखें? नहीं, मुझे ये नहीं पता कि आपने हाल ही दिनों हमारी इमरजेंसी में विजिट किया या नहीं किया। जनरली मैं एक बता, मैं हमारे एक जाने माने एडवोकेट आए मेरे ऑफिस, मेरे पहले दिन मुबारकबाद देने। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब इमरजेंसी का कुछ करिए। मैंने कहा क्यों? कह रहा इमरजेंसी में अगर किसी को अपना ईगो खत्म करना हो, तौबा करना हो, आपके इमरजेंसी में जाना चाहिए। ये उनकी बात मुझे दिल पे लगी, तो मैंने उसी टाइम इमरजेंसी में जाके पूरा डॉक्टर साहबान को ले लिया और एसेस कर दिया। मुझे ये समझ आया हमारे इमरजेंसी की प्रॉब्लम 2 चीज़ें हैं। एक है जब हमारा इंस्टीट्यूट बना, यहाँ इमरजेंसी सर्विस नहीं थी, ये खाली रेफरल सेंटर। ट्रू, बिल्कुल सही। तो प्रॉपर इमरजेंसी कभी बनी नहीं थी। दूसरा मैंने ये देखा 850 950 से 1000 पेशेंट जिस जगह 24 घंटे में आ जाएगा, तो वो तो एक जुलूस है ना, मेला है। बिल्कुल सही। 1000 लोग कहीं आना, आप समझे? सही। वो तो बड़ा एक लीडर, जो पॉपुलर लीडर होता है, जब जलसे में जाता है 1000 लोग आते हैं जी। तो ये समझे कितने लोग हैं। इनके लिए वॉशरूम्स की फैसिलिटी, चेयर्स की फैसिलिटी, उनके लिए तभी मैंने कहा ना इमरजेंसी हैंडल उन्हीं क्राउड के बीच में से गुजरना। क्राउड के वहाँ तो मतलब वहाँ तो दूर दूर के पेड़ भी खत्म हो गए, ये ग्रीनरी भी खत्म हो गई, क्योंकि इतने लोग आना। फिर मैंने समझा प्रॉब्लम क्या है। हमने समझा, देखिए इस क्राउड को कम करने की कोशिश हमें पहले कोऑर्डिनेट करना है पेरिफेरल हेल्थ सेंटर्स के साथ, सब सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हेल्थ डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ताकि उनको बोलेंगे सर आपकी रेफरेंस रेगुलेट करनी है, हर पेशेंट हमारे पास ना आए, जिसको बहुत ही लामहल आना है सोहरा के इमरजेंसी में, वो आ जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमें पब्लिक को भी अवेयर करना है मीडिया से कि फजूल में छोटी मोटी तकलीफ लेके इमरजेंसी में मत आइए। ठीक है, प्लीज। ये टाइम किसी उस बंदे का हक है जिसको ला है कि अगर उसको 5 मिनट हम नहीं अटेंशन देंगे वो मर जाएगा या उसका कुछ आयजा खत्म हो जाएगा। तो हमें किसी को एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ ट्रामा हो गया, इसको ट्रामा में 5 मिनट नहीं पहुंचा, हमने अटेंड नहीं किया, हार्ट अटैक हो गया, हमने 5 मिनट 10 मिनट अटेंड नहीं किया, उसकी जान जा सकती है। तो अगर किसी को थोड़ी सी दर्द है, वो कहता है सर शाम को डॉक्टर मैं गया खुद पीडियाट्रिक कैजुअलिटी में, वो बच्चे के लेके आया। मैंने बोला आप क्यों आए? कहता नज दोल छना आसा इस पन्ने कामे तो शामन जीवन में फुर्सत बास बचत। मैंने कहा ये तो बहुत ही इरेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी बात है, वो लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट करने की जरूरत है। तीसरी चीज मैंने देखी, व्हाट कैन हॉस्पिटल डू। तो अब मैंने अर्जेंट मेजर्स कुछ लिए,
उसमें हमने एक ट्रायेज सिस्टम खड़ा किया। ट्रायेज सिस्टम क्या मतलब होता है कि जो आपको मरीज आते हैं पहले उनको क्विकली स्क्रीन करा जाएगा। आपको क्विकली देखते हो लाइन में या लाते हो उनको, आपको क्या है आप इधर जाओ, आपको क्या है आप इधर जाओ, तो आप स्क्रीनिंग करते हो, ग्रेडिंग करते हो। जिनको बहुत ही अर्जेंट अटेंशन देते हैं उनको आप इमरजेंसी में डालते हो, जिनको सेमी अर्जेंट टाइप है उनको वहां वेट कराते हो, जिनको कुछ माइनर है वो किसी जूनियर को बोलते बेटे इनको दवाई लिखो पैरास्टामॉल दिए तो भेजो घर, उनको कोई फाइल कार्ड वार्ड बनाने की जरूरत नहीं। वो ट्रायल सिस्टम से बहुत फर्क आ गया है, अभी ये किया हमने। तीसरी वहाँ हमारी कैजुअलिटी में ओवर क्राउडिंग थी, वहाँ बच्चों का जो भी कैजुअलिटी थी वो वहीं थी, वो मैंने शिफ्ट किया दूसरे ब्लॉक में। और एक इशू था वहाँ, अलग रास्ता नहीं बना सकते आप उनके लिए, वहाँ अलग रास्ता अलग नहीं, मैंने एक अलग रास्ता क्रिएट किया, उसको बोलते हैं अर्जेंसी साइड बनाया मैं, जो पीछे से मान लीजिए यात्रा में कुछ लोगों का प्रॉब्लम हो गया, हेलीकॉप्टर से आपका पेशेंट आ गया। हाँ एब्सोल्युटली, वो हमने कर लिया। उसको हमने एक रैपिड एक्शन टीम बनेगी, वो इस महीने इंशाल्लाह। पहले हमने एक इमरजेंसी सर्विसेज पे वर्कशॉप रखा, वो वर्कशॉप इन दिनों हो जाएगा, उसमें एक्सपर्ट्स को बाहर से बुला रहे हैं, हम उस पर डिसाइड करेंगे। एक रिकमेंडेशन बनेगी, गाइडलाइन बनेगी, उस गाइडलाइन के हिसाब से हम इमरजेंसी को रिवैम्प कर रहे हैं। तो वो वर्कशॉप होने वाला है। हम कह रहे हैं कि रैपिड एक्शन, सपोज कोई एम्बुलेंस में पेशेंट आया या चॉपर से आया, वो पहुंच गया कहाँ से, उसको हम रूटीन वाले रास्ते से नहीं घुसाएंगे। उसके लिए हमने सेपरेट अर्जेंट डोर है जिसमें हार्डली 1 मिनट लगेगा अंदर जाने में, और वहाँ रैपिड एक्शन टीम उसको वहीं एसेस करेगी, वहीं पे CPR करना है, ट्यूब लगानी क्या है, वो एंट्री से ही शुरू हो जाएगी। आप जो अपने चॉपर वाली बात की, हमने यात्रा में जो हमें एम्बुलेंस से आते थे या टेलीमेडिसिन हमने यूज किया बालतल के साथ, जो हम बोल रहे थे कि ये पेशेंट ऐसा है, इसको ये प्रॉब्लम है, हम उसको यहीं से हमारा डॉक्टर बोल रहे हैं उसको आप तब तक ये करो, इतने टाइम में चॉपर में भेज दो। चॉपर में यहाँ हमारी टीम खड़ा है, उसको रिसीव किया, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, पीछे के डोर से लिया, उसको जो भी ट्रीटमेंट है रिक्विजिट ट्रीटमेंट वो कर लिया टाइम पे। तो उससे हमारी सर्वाइवल, हम 160 यात्री में से अभी तक वी लास्ट ओनली 5, हालांकि वो क्रिटिकली थे, अगर उनको टाइम नहीं मिलता इट वाज अ वर्चुअली डेथ सेंटेंस। 150 में से 140 वुड हैव बीन नो मोर। अगर मतलब वो आई थिंक आवर मैनेजमेंट हैज बीन गुड, दैट इज अ गुड एक्सपेरिमेंट। मैंने अपने डॉक्टर्स को लाया, मैंने बोला ये जो यात्रा का चैलेंज है इससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जैसे कोविड आया, कोविड हमें बहुत चीजें सिखाई इस केयर में, इसी तरह यात्रा बिकेम अ गुड टेस्ट फॉर अस, ट्रायल टेस्ट, जिससे हमने इमरजेंसी को रिवाइव करने की कोशिश की। हम आप जो कहे, मैं चाहूँगा सरकार से मांगूंगा, वी वुड लाइक टू कीप एम्बुलेंस सर्विस, एयर एम्बुलेंस सर्विस, कि सपोज हमें गुरेज से लाना है सिक पेशेंट, तिलेल से लाना है, हमारे यात्री आते हैं, हमारे टूरिस्ट्स आते हैं, टूरिस्ट पहलगाम गए, कहीं गया, गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट गया, इमरजेंसी हो गया, टूरिस्ट को वहाँ एम्बुलेंस चॉपर उठाएगा, एम्बुलेंस से हमारे इस पे लाएंगे। हमारे पास है हेलीपैड, हमारे थिएटर पे भी सुविधा है, नीचे लाने के टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा। तो हम एम्बुलेंस, या कभी कभी हमें यहाँ का पेशेंट कहीं दूर दूसरी जगह बाहर लेना है, जनरली सोरा इंस्टीट्यूट में फैसिलिटीज इतनी है, यहाँ के पेशेंट को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग जाते हैं वो शो किया जाते हैं, या उनको ये लगता है कि वहाँ केयर अच्छा मिलेगा, तो मेरे ख्याल से हमें वो जरूरत है। बट अगर पड़ेगी तो हमारे पास एयर एम्बुलेंस की सुविधा रहनी चाहिए, वो पेड सर्विस रह सकती है। जी बिल्कुल, हाँ, बट जो एफर्ट करेगा वो रख सकता है। सर इमरजेंसी में एक बायोकेमिस्ट्री लैब का होना जरूरी है अलग इमरजेंसीज के लिए। हाँ, हमारे पास इमरजेंसी लैब है, वो चलती है, बायोकेमिस्ट्री नहीं है। मुझे लग रहा है आपने होमवर्क अच्छा किया है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने चीज़ें देखी है। हमारे पास इमरजेंसी लैब अभी की जो है वो थोड़ी दूर है, और अभी पूरी बायोकेमिस्ट्री नहीं होती है, लिमिटेड बायोकेमिस्ट्री होती है, तो वो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर किया है। हमारा जो पीडियाट्रिक कैजुअलिटी जहाँ शिफ्ट की हमने इमरजेंसी के अपोजिट, हमने वहाँ ऑलरेडी स्पेस बनाई है, इस वक्त उसकी सिविल वर्क हो रही है, कल AC लगने हैं,
अगले हफ्ते या 2 हफ्तों में वो इमरजेंसी लैब विद फुल set of investigations which are required for an emergency patient will be established. चलिए अच्छी बात। सर आपके हॉस्पिटल में कितने बेड कैपेसिटी है अभी इस वक्त? अभी हमारे पास 1025 बेड है। तो जब बना था इंस्टीट्यूट तब 500 बेड बना था। तो अब हमारे पास सिक्किम मेडिकल कॉलेज है, हमारे पास हाजिन सुंबल वाला ब्लॉक जो है वो भी एक बड़ा एरिया है। सिक्किम इज टेकिंग केयर ऑफ दैट ऑल्सो। तो हमें वो भी मैनेज करना, ये भी मैनेज करना होता है। सर तो अगर वो बेड देखें तो फिर बहुत है। थोड़ी देर पहले आपने स्टाफ की बात की, स्टाफ की काफ़ी डर्थ है आपके पास, खासतौर से पैरामेडिक्स में। बहुत पहले डायरेक्टर जो हुआ करते थे इंस्टीट्यूट के वो खुद अपॉइंटमेंट्स करते थे, लेकिन बाद में अब आपको कहा गया है ये SSRB को रेफर करें। आपके पास इस वक्त जो स्टाफ की कमी है इसको इमरजेंसी बेसिस पे आप कैसे पूरा कर रहे हैं? ये भी सुना है कि आपने रेफर किए हैं पोस्ट टू SSRB, बट दे टेक टाइम। रेफर नहीं हुई उसमें, और कुछ भी इतना इजी भी नहीं है। हम जो हमारे पे पोस्ट है कुछ हमने रेफर किए, कुछ पोस्ट के लिए हमें उनका रूल बनाना होता है। रूल के बाद हमारे कुछ पोस्ट उसको रिवाइव किया जाता है फाइनेंस से, क्योंकि रिवाइव अगर कोई पोस्ट 2 साल तक एडवर्टाइज नहीं, उसको रिवाइव करना है। रिवाइव करने के बाद चाहे PSC को देना है या SSRB को देना है, वो अपॉइंटमेंट करेंगे। जाहिर सी बात है टाइम कंज्यूमिंग है, मगर मेरा एंडिवर ये रहेगा, अभी तक मेरा सरकार से पूरा कॉपरेशन मिल रहा है। मैंने रिक्वेस्ट किया है कि अगर हमें परमिशन दिया जाएगा तब तक किसी अरेंजमेंट, एकेडमिक अरेंजमेंट हम लगाएंगे स्टाफ, जब तक वहाँ प्रोसेस हो जाएगा। और हम चाहेंगे कि ये प्रोसेस इंस्टीट्यूट के हाथ में रहती तो बहुत अच्छा था। तो अभी मैं चाहता हूँ मैं PSC और JK SSRB के साथ इन टच जाऊँगा, उनको रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि हेल्थ का मामला है डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा प्रायोरिटी पे किया जाए। डॉक्टर साहब हम उम्मीद करते हैं कि आपके एंडेवर्स अच्छा फल लाएं इंस्टीट्यूट के लिए और इंशाल्लाह तरक्की करें और जो छोटी मोटी कमियां हैं वो दूर हों। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। बातें और भी करनी थी लेकिन टाइम की कमी थी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।